آج جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے بچے لندن سے چلتے ہیں تو ہمیں پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہنچے ہیں، جبکہ ماضی میں جب ان کا کوئی بزرگ دور دراز یا نزدیک کے سفر پر ہفتہ یا مہینے بھر کے لیے روانہ ہوتا تھا تو اس کے واپس آنے تک کسی کو اس کے بارے میں اور اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون زندہ ہے اور کون دنیا سے گزر گیا ہے۔ ہمارے دادا بتاتے ہیں کہ ڈھول کی بھی ایک زبان ہوتی تھی۔ میراثی سورج نکلنے سے پہلے کسی پہاڑی پر چڑھ کر مخصوص دھن میں ڈھول بجاتے اور ارد گرد کے دیہات میں خبر ہو جاتی کہ فلاں فوت ہو گیا ہے۔ اس وقت وسائل نہیں تھے مگر سکون بہت تھا۔ اب سہولتیں تو بہت ہیں مگر سکون نہیں ہے۔ اس دور میں کوئی روت حلال کمیٹی نہیں ہوتی تھی، سو اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جاتا تو وہ لوگ اپنے محدود وسائل میں رہ کر خوشیوں بھری بھرپور عید منا لیتے تھے۔ رمضان ختم ہوتے ہی سب عید کی بے پناہ خوشی میں سرشار ہو جاتے تھے۔ گھروں کی صفائی ستھرائی تو پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہوتی تھی۔ عید کی رات کو گدیوں پر نئے غلاف اور بستروں پر رنگ برنگی چادریں ڈالی جاتی تھی۔ بیٹھک کو نئے سرے سے صاف کیا جاتا تھا۔ نیا میز پوش مہمانوں کے لیے برتنوں کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ مردوں کو بے چینی ہوتی تھی کہ عید کی رات تک درزی نے کپڑے سی کر نہیں دیے۔ تیار کپڑوں کا دکان پر ملنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، نہ تو دکان پر سلے سلائے کپڑے ملتے تھے۔ جو بھی بنانا ہے وہ درزی نے ہی بنانا ہے، اور عید والے دن سب سے زیادہ ٹینشن اپنے کپڑوں کی ہوتی تھی کہ وہ درزی سے ملیں گے بھی کہ نہیں۔ اور عید کی رات تک درزی بیچارے کی جان پر بنی ہوتی تھی، اور آخرکار وہ سوٹ مل ہی جاتا تھا۔ اور اب خاتون خانہ کے استری کا امتحان ہوتا تھا۔ مردانہ کپڑے استری کرنا بھی ایک کمال ہوتا تھا۔ سب گھر والوں کے کپڑے استری کر کے الماری کے اندر رکھ دیے جاتے تھے۔ چاند رات کہنے کا ابھی کوئی رواج نہیں ہوا تھا۔ عید کی رات یا عید والی رات ہی اس آج کے چاند والی رات کا نام تھا۔ آج لوگ چاند رات کہتے ہیں مگر اس وقت کسی کو چاند رات کہنے کا کوئی رواج نہیں تھا، بس عید والی رات ہوتی تھی۔ آخری روزہ کھلتے ہی چھتیں آباد ہو جاتی تھیں اور نظریں مغرب کی سمت آسمان کی لالی کے اوپر، جس کی جتنی نظر تیز ہوتی آج اس کی واہ واہ ہوتی۔ یہ وہ معصومانہ زمانہ تھا جب روت حلال کمیٹی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نہ تو دو دو روزے ہوتے تھے اور نہ ہی دو دو عیدیں، بلکہ اس قسم کی باتوں سے نیک شریف اور سادہ دل لوگ کوسوں دور تھے۔ چاند خود دیکھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور عید بھی چاند کو دیکھ کر کرتے تھے۔ چاند بھی ایسا پیارا کہ نظر آ جاتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سرکاری دوربینوں کا محتاج ہو جائے اور عام آدمی، عورت یا بچے کو نظر نہ آئے۔ ہماری ماں چاند پر نظر پڑتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی، اور پھر مسجد میں اعلان شروع ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی گھروں کے اندر ہی لگاتی تھی۔ اس دور میں بیوٹی پارلر اور مہندی ڈیزائنر نہیں تھے، بلکہ 2 گھنٹے سے ہی اس کو گھول کر رکھ دیا جاتا تھا، اور ہاتھوں اور پاؤں پر بالکل سادہ طریقے سے مہندی لگائی جاتی تھی۔ نہ تو اس دور میں پھول پتیاں یا مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے جاتے تھے، مگر پھر دور بدلا، وہی لڑکیاں بیوٹی پارلر اور مہندی ڈیزائنر کے پاس مہندی لگوانے کے لیے جانے لگیں۔ ماں اصل گھی کا تڑکا لگا کر سوئیاں تیار کر لیتی تھی۔ شیر خوارما کا رواج کم ہی تھا۔ ابلی ہوئی سوئیاں، ملائی، دودھ اور شکر ڈال کر جو شیرنی اس پکوان میں ہوتی تھی، اور وہ خوشبو اور ذائقہ زندگی بھر کبھی نہ ملا۔ عید والے دن بہت تھوڑی کرنسی ملتی تھی، 8 انے، 1 روپے، 5 روپے، اور سب سے بڑی عید 10 روپے ہوتی تھی۔ دروازوں کے باہر جھولے لگے ہوتے تھے، سادہ سے کپڑے، ہاتھوں پر مہندی، ہاتھ میں 1 روپے۔ گلی کی لڑکیاں جھولا جھولنے نکل پڑتی تھی۔ کوئی ڈر کوئی خوف کسی کے قریب بھی نہ بھٹکتا تھا۔
लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी के झूले और तलियों से बना हुआ लट्टू खरीद कर लाते। लकड़ी की गाड़ी बहुत शोर करती, घरों में रोटी पकती थी, मर्द घर आकर भी खाना खाते थे। हमसायों का बेहद ख्याल रखा जाता था। सबके चेहरों पर खुशियां और मुंह पर ईद मुबारक होता था। आज पीछे मुड़कर देखते हैं, न गलियां हैं, न गलियों में रहने वाले शरीफ नफ्स और सादा लोग हैं। उनकी औलादों ने बाप दादा के घरों को औने पौने बेचकर बड़े बड़े घर वीरानों में बना लिए हैं। ना अब वैसी ईद है और ना अब वैसा वो चांद है जो सबको नजर आ जाता था। हमने तरक्की तो बहुत कर ली, मगर तरक्की के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। वो सादा दौर था, लोगों में अदब व एहतराम, प्यार, मोहब्बत और खुशियां बांटने का रवाज आम था। वो दौर क्या ही सादा दौर था, ना जाने कहाँ चला गया वो दौर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि आप आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस देखकर अपने माजी को हमेशा के लिए याद रख सकें। बूढ़े बूढ़े दर सन, निक्के निक्के घर सन। बूढ़े बूढ़े दर सन, निक्के निक्के घर सन। ना टैलीफोन सी, कितना सकून सी। बिजली ना गैस सी, ना ही कोल कैश सी। घर घर दाने सन, कमले भी सियाने सन। चोरी ना चकारी सी, खुले आम यारी सी। खुली कपाह सी, पूरा लिबास सी। मियाँ ना जरदारी सी, ना ही कोई बीमारी सी। लोग दिल वाले सन, नूर दे उजाले सन। सुबह उठ जांदे सन, काम मुक जांदे सन। सुर संगीत सन, प्यार वाले गीत सन। सुर संगीत सन, प्यार वाले गीत सन। टप्पे ते माइये सन, ढोल सपाइये सन। खूਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਸੀ, ਮਿੱਠੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਖਰੇ ਸੁੱਚੇ ਪਿਆਰ ਸਨ, ਯਾਰ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ, ਜੰਜਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੱਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਡੱਕਣਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਨ, ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਸਨ। ਨਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਨਾ ਕਲੈਸ਼ਨ ਕੋਫ ਸੀ। ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਸਨ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ। ਵਗਦਾ ਚਨਾਬ ਸੀ, ਹਰ ਕਿੱਲਾ ਸੈਰਾਬ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਘਿਓ ਸੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਲੋ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਆਮ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਸਨ, ਆਣ ਜਾਣ ਲਈ ਢੇਲੇ ਸਨ। ਕਰਨੈਲ ਸਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਸਨ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਸਨ, ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਥੜੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਸਨ, ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਥੜੇ ਸਨ। ਘੜੇ ਤੇ ਤਾਸ ਸੀ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਤੇ ਬੇਲੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਤਰਾਂ ਤੇ ਖੀਰੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੀਰੇ ਸਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਕਮਾਦ ਸੀ, ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਹੀਰ ਸੀ, ਰਾਂਝਾ ਸੀ,
ਨਾ ਚਰਸ ਨਾ ਗਾਂਜਾ ਸੀ। ਬੰਬ ਨਾ ਧਮਾਕੇ ਸਨ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਸਨ। ਸਸਤੇ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਸਨ, ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੋਕ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਫਰੂਟ ਸਨ, ਜਾਮਣ ਤੇ ਸ਼ਤੂਤ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਚਕਵਾਲ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਮੁਰਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ। नब्बे की दहाई की कुछ ऐसी यादें जिन्हें देखकर आज भी दिल खून के आंसू रोता है। मिस जल्दी जल्दी छुट्टी दे दें, बाकी का होमवर्क घर जाकर कर लेंगे। ऐनक वाला जिन आने वाला है। ये वो ख्वाहिश थी जो हर जुमेरात को एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों के दिलों में होती थी। बच्चे तो बच्चे, ट्यूशन की मिस भी ऐनक वाला जिन कभी मिस नहीं करती थी। 1990 की दहाई वो शानदार दहाई थी कि जिसका भी बचपन उस दहाई में गुजरा वो बचपन तक नहीं भूलेगा। ये वो दौर था जब वसाइल तो कम थे, लेकिन मज़ा आज से कहीं ज़्यादा था। अमीर हो या गरीब, हर बच्चे के शौक सांझे होते थे। सुबह सुबह पीटीवी पर तारड़ हुसैन के मॉर्निंग शो में 5 मिनट के कार्टून्स की वो अहमियत थी जो आजकल 24 घंटे के कार्टून नेटवर्क की भी नहीं है। स्कूल का बस्ता पहनकर अम्मी के हाथ से नाश्ता कार्टून स्क्रीन के सामने होते थे। जैसे ही कार्टून ख़त्म होते स्कूल का सफ़र शुरू हो जाता। 1994 की बात है जब सीना फ़ख्र से चौड़ा था। पाकिस्तान के पास 4 वर्ल्ड कप थे, क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर और स्क्वैश। लेकिन आज हॉकी और क्रिकेट का हाल देखकर ज़माना हाल से कूद कर वापस माजी में जाने को दिल करता है। आज हमारे पास चॉइस तो बहुत है, लेकिन वक्त नहीं। टीवी स्क्रीन पर 100 से ज़्यादा चैनल मौजूद हैं। टीवी को अपने इशारों पर नचाने के लिए रिमोट भी है, लेकिन इंफॉर्मेशन पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ नहीं आता कि क्या देखें और क्या छोड़ें। लेकिन 90 की दहाई में सिर्फ एक पीटीवी और STN था, और यहाँ चलने वाला हर प्रोग्राम, हर ड्रामा, हर कार्टून, हर किसी की ज़ुबान पर आम था। ड्रामा शहबाज, अंगारे वादी, अल्फा ब्रो चार्ली, हवाएं तो एक तरफ। 90 की दहाई में ना तो मोबाइल फ़ोन आम था और ना ही इंटरनेट, लेकिन समाजी राब्ते आज से ज़्यादा मजबूत थे। ज़रा गौर करें, आज एक ही घर में एक ही कमरे में बैठे वालिदैन और बच्चे आपस में गुफ्तगू करने की बजाय मोबाइल पर 7 समंदर पार सोशल मीडिया पर हाजिर होते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन जहां तेज़ और आसान हुआ है, वहीं रवायती कम्युनिकेशन का गैप भी महसूस किया जा रहा है। अब रात के वक्त घरों, गली मोहल्लों में थरों और पट्टों पर चौपाल कम ही लगती है। जहां मोहल्ले में आने वाले हर नए शख्स का पता चलता था, वहां अब पड़ोसी भी अनजान लगता है। डिजिटल दौर का इंसान भी अब डिजिटल होता जा रहा है। बुरा हो उस केमिकल वाली डोर का जिसने बसंत जैसे रंगीन त्यौहार की डोर ही काट डाली। अब छतों पर बो काटा की आवाज़ें गूंजती हैं और ना ही पेचे लड़ते हैं। उड़ती पतंगों पर कमंदे झाड़े लगे, बांस से कटी पतंग पकड़ने का जो मज़ा था वो अब शायद ही कभी वापस आए। 90 की दहाई में जदीद वसाइल तो ना थे, लेकिन सुकून की दौलत आम थी। खुदकश धमाकों का कभी नाम तक नहीं सुना था। रावी चैन लिख रहा था, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जुड़वां भाई था। सड़कों पर सिक्योरिटी के नाम पर नाके नहीं थे, जगह जगह तलाशियां नहीं देना पड़ती थी। सिनेमाओं में रौनकें थी, दूध खालस और भैंस का मिलता था, वो भी 10 रुपए किलो। रोटी 1 रुपए में मिलती थी और गोश्त हर किसी की पहुंच में था। लेकिन अब जाने कहाँ गए वो दिन। लोग रहते दूर दूर थे, लेकिन दिल बहुत करीब थे। PTCL फ़ोन मोहल्ले में इक्का दुक्का लोगों के घरों में होता था और पूरा मोहल्ला उसी घर में ज़रूरी फ़ोन सुनने जाता था।
कंप्यूटर, केबल और डीवीडी का वजूद ना था, लेकिन वीसीआर में वीडियो केस डालकर फिल्म पूरी फैमिली देखती थी। वीसीआर का हेड साफ करना आम सी बात थी। बड़ी अय्याशियों में एक अय्याशी पोल्का की आइसक्रीम थी। 1 रुपए के टोकन वाले वीडियो गेम थे। आजकल ऐसे गेम्स हज़ारों गुना बेहतर गेम्स कंप्यूटर और एंड्रॉयड फ़ोन्स में आ चुकी हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आजकल के एंड्रॉयड बच्चे जितने फ्रेंडली हैं उतने ही जिस्मानी वर्जिश से दूर हैं। रवायती खेल छुपन छपाई, कबड्डी कबड्डी, बांदर किला, गुल्ली डंडा, स्टापू, बाडी बाडी, पिट्ठू ग्राम वगैरह अब तो नापैद ही होती जा रही हैं। आजकल की नस्ल मोबाइल फ़ोन और टैबलेट से जितनी पास उतनी ही आउटडोर खेलों से दूर है। डेंटोनक का इश्तिहार आज भी देखो तो बचपन आंखों के सामने आ जाता है। पीटीवी पर चलने वाला 9 बजे के खबरनामे को देखकर मुल्क में अमन व अमान और तरक्की का सच्चा या झूठा एहसास ज़रूर होता था। कमर्शियल न्यूज़ चैनल अपना अपना मंचन बेचने के चक्कर में लोगों का चैन नहीं खरीदते थे। सड़कों पर लारियां भी थी और सवारियां भी, लेकिन ज़्यादातर साइकिलें चलती थी। एसी किसी किसी के पास था, लेकिन गर्मी नहीं लगती थी। उस दौर में तो लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं था। कभी गर्मियों में रात 8 बजे से 9 बजे तक बिजली जाती तो 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो जाता। पूरी फैमिली छत पर जाकर गपशप लगाती और बिजली आने का इंतज़ार करती। और बिजली आने पर पूरे मोहल्ले में शोर ऐसे मचता था जैसे पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। लेकिन अब तो अवाम लोड शेडिंग के इतने आदी हो चुके हैं कि अब बिजली ही माजी की बात लगती है। लेकिन अब तो वो दौर भी गुजर गया और वक्त भी। अगर कुछ रह गया तो सिर्फ यादें। अब तो इतनी तेज़ी से तरक्की हो चुकी है कि 90 की दहाई 1 सदी पुरानी लगती है। आज के पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं। ये बात भी ठीक है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कल्चर में तब्दीली पर गिले शिकवे की बजाय उसे गले लगाना चाहिए। मुझे 90 की दहाई का ना तो पीटीवी चाहिए और ना वो पुराने कार्टून और ना ही वीसीआर। 90 की दहाई से मुझे सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए: बिजली, अमन, खेल और बसंत। हुक्मरान रोशन मुस्तकबिल के वादे बेशक ना करें, कम अज़ कम माजी की ये 4 चीज़ें ही लौटा दे तो वो कौम आपकी शुक्रगुजार होगी और नौजवान नस्ल भी 90 की दहाई का मज़ा अपने मुस्तकबिल में चख ही लेगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी अपने 90 के दोस्तों की पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। वहाँ आपको बचपन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिन्हें देखकर आपका बचपन दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।